Hello everyone, in this video we are going to cover exercise 1.3 chapter 1 class 10th NCERT exemplar maths, right? We have already done with exercise 1.1 and 1.2. Now we are going to start with exercise 1.3. This is our first question. Show that square of any positive integer is either of the form 4q or 4q plus 1 for some integer q. उन्होंने किसकी बात कर रहे हैं? शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर आप स्क्वायर करते हो इज ईदर ऑफ द फॉर्म 4q और 4q प्लस 1. अगर आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करते हो तो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, राइट? Positive integer like 1 square, 2 square, 3 square, 4 square. 1 square is 1, 2 square is 4, 3 square is 9, 4 square is 16. अब आप इसमें 1 स्क्वायर की तो बात ही नहीं करोगे, बिकॉज यहाँ से बात एक चीज तो बहुत क्लियर है कि हमारा डिवाइजर कितना चल रहा है 4, तो नंबर शुड बी ग्रेटर देन 4 ना. अगर हमने उसको डिविडेंड लेना है तो वी विल नॉट कंसिडर दिस केस. वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. दिस कैन बी रिटन एज 4 into 1. दिस इज द फॉर्म ऑफ 4q. 9 can be written as 3 square can be written as 4 into 2 plus 1. This is in this form 4q plus 1. Now have a look on this one, 16. This can be written as 4 into 4. This is 4q. 5 square is 25. This can be written as 4 6 plus 1. राइट, दिस इज 4q प्लस 1. अब किसी भी इंटीजर की बात कर लो, किसी भी इंटीजर अगर आप उसका स्क्वायर करते हो तो यू कैन एक्सप्रेस इट इन दिस फॉर्म, राइट? नाउ वी विल डू इट इन द जनरल वे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट मी क्लियर दिस वन. बेटा एज वी नो 4 इज द डिवाइजर है, राइट? और 2 स्क्वायर भी 4 के इक्वल होता है. तो हम यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 4 वी कैन टेक 2 ऑल्सो, बिकॉज we are having only two possibilities for the remainder 0 and 1. So we can take 2 here as a divisor instead of taking 4, because यहाँ पे हमें स्क्वायर करना है तो हम 4 की जगह पे 2 भी डिवाइजर ले सकते हैं. ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं. लेट a be any positive integer and b is equal to 2 is the divisor. Then by Euclid's division lemma, remainder will be 0. Then by Euclid division lemma we can write it as a is equal to 2q plus r, where r is equal to 1 and or 2. Remainder can be 0 and 1, right? 0 and 1 because divisor is 2 ना, तो remainder can be 0 and 1. अब बेटा देखो यहाँ पे मैंने q नहीं लिखना है. हमें पता है इसकी फॉर्म तो यही होती है, पर जो हमें फाइनल आंसर एक्सप्रेस करना है वो q की टर्म्स में करना है. तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग q है, यहाँ पे हम कोई और वेरिएबल लेके चलेंगे. लेट इट बी m, क्योंकि हमें स्क्वायर के बाद इस फॉर्म में q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है ना, तो हम इनिशियली यहाँ पे q नहीं लेंगे. ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं. दिस therefore a can be when r is equal to 0 2m or a can be 2m plus 1. now we have to do squaring. चलिए पहले स्क्वायरिंग करते हैं. इसमें squaring both sides, squaring both sides, what you will get here? a square is equal to 4m square, right? so it can be written as 4 multiplied by m square. This can be written as 4q, where q is m square, right? Now we have to consider our second case, and in our second case what we have a is equal to 2m plus 1. Again do squaring both sides. If you will do square here and here also, you will get a square. This is a square plus b square plus 2ab. Now you can see among these two terms you can take 4 common. Separate this one.
you can write it as like this na, 4m square plus 4m plus 1. Take 4 common among both of them. You will get m square plus m प्लस 1. अब आप बोलोगे कि m भी कॉमन आ रहा है, पर हम m कॉमन लेंगे नहीं क्योंकि हमें चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए 4q है, तो हम इसको अंदर ही रहने देते हैं. दिस इज 4q प्लस 1 वेयर m q किसके इक्वल है, m स्क्वायर प्लस m के इक्वल, राइट. तो square of any positive integer can be expressed in the form of 4q or 4q plus 1. Right, hope it is clear. Now let's do second question. Okay, now let's do our second question is, show that the cube of any positive integer is of the form 4m plus 1, 4m plus 1, 4m plus 3. किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर आप क्यूब करते हो, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, you can express it in one of these forms, either 4 multiplied by something or 4 multiplied by something plus 1, 4 multiplied by something plus 3. तो 1, ये तो 1 ही है, यहाँ पे डिवाइजर तो वैसे ही छोटा हो गया, तो ये वाला केस तो हम कंसिडर ही नहीं करेंगे. 2 2s are 4, 2s are 8. This can be written as 4 multiplied by 2. This is the form of 2q. This can be written as 27. इसको कैसे लिखोगे, 4 से डिवाइड करना है ना इसको. 4 6 are 24, 4 6 are 24, 3 रिमाइंडर, तो दिस इज 4q प्लस 3 की फॉर्म बन गई. नाउ डू दिस वन, ये तो 4 का मल्टीपल ही आएगा ना. 64 है तो यू कैन राइट इट एज 4 इंटू 16. अगर आप 5 का क्यूब लेते हो तो 5 क्यूब इज इक्वल टू 125. अब आप इसको 4 की टर्म्स में लिख के देख लो. 4 this is 124 is divisible by 4 ना, 124 31 पे जाता है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 31 प्लस 1. आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, चाहे 4 3s are 12 प्लस 1 125. तो यू कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1. किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर आप क्यूब करते हो ना, तो आप इसको 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो. तो यही हमने यहाँ पे जनरलाइज्ड वे में प्रूव करना है, ठीक है. तो इसमें 1 वाला केस हमने कंसिडर नहीं करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट a बी एनी इंटीजर, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर. अब यहाँ पे आप b ना 2 नहीं ले सकते, चाहे 2 का क्यूब हमारे पास 4 का मल्टीपल आता है, पर फिर भी हम b2 नहीं ले सकते. क्यों नहीं ले सकते b2? बिकॉज हमारे पास यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज बता रखी हैं. अगर हम 2 एज अ डिवाइजर लेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 3 नहीं बनेगा. हमारे पास मतलब 2 ही केसेस बनेंगे ना, a प्लस 1, और जहाँ तो रिमाइंडर 0 आएगा जहाँ फिर 1 आएगा. तो हम एज अ 2 यहाँ पे वो नहीं ले सकते हैं, 2 एज अ डिवाइजर नहीं ले सकते. हमें एज अ 4 ही यहाँ पे डिवाइजर लेना पड़ेगा और उसी के साथ हमें क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट b इज इक्वल टू 4 इज इट्स डिवाइजर, राइट. अगर हम 2 लेंगे तो हमारे पास 2 ही केसेस बनेंगे, इसमें से सारे नहीं बनेंगे, तो इसलिए हम 4 ही लेंगे. तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, व्हाट यू विल गेट a इज इक्वल टू 4q प्लस r. अब यहाँ पे q ही लेंगे क्योंकि यहाँ पे तो m है, तो q का तो q है नहीं है, तो हम q ले सकते हैं ना यहाँ पे. तो यहाँ पे r कैन बी 0 1 2 and 3, राइट. रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देन a कैन बी 4q. फर्स्ट केस, a कैन बी 4q plus 1 when remainder is 1. A can be 4q plus 2 when remainder is 2. A can be 4q plus 3 when remainder is 3. Now you have to do cube on both the sides by cubing on both the sides, and then you have to express your answers in this term, right? तो let's start. जब आप इधर क्यूब करोगे तो ये वाला तो इधर ही आ जाएगा, है ना. A cube is equal to, this is 64 क्यूब.
Can we write it as 4 multiplied by 16 q cube? This is 4m, where m is equal to 16 q cube. Now do this one. Let me clear the board. Now let's take our second part. A cube is equal to 4q plus 1 whole cube. What is the identity for a plus b whole cube? Is a cube plus b cube plus 3a square b plus 3a b square. So let's use this identity here. A cube will be as it is. This is 64q cube plus 1 का क्यूब 1 ही होता है, प्लस 3a square b plus 3a b square, right? Q plus 1. This can be written as 48q square, and this can be written as 12q, right? अब 1 को सेपरेट कर दो, इन तीनों में से आपके पास 4 कॉमन आ रहा है. 64q क्यूब प्लस 48q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 1. तो इसमें से 1 को सेपरेट कर देते हैं. यू विल गेट है 16q स्क्वायर 12q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1. So this can be written as 4m plus 1, where m is equal to 16q square plus 16q cube, this is cube, plus 12q square plus 3q. Now let's do this third and fourth case, right? In first case we got answer 4q, in second case we got 4q plus 1. अब देखिए third case में क्या होता है. This is 4q plus 2 whole cube, a cube plus 2 cube plus 3a square b plus 3a b square. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. This 64q cube plus 8. This is कितना आएगा ये 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 3 ज़ा 96 q square plus this is 4 4 ज़ा 16, 48 q. अब देखो बेटा, अब यहाँ पे अगर आप 8 को सेपरेट कर देते हो तो आपके पास, अब आप सब में से अगर 4 रिमाइंडर निकाल लेते हो, वैसे तो इन सब में से 4 आपके पास कॉमन आ रहा है. You are getting 4 common among all these terms. Yes, so you can take 4 common among all these. You will get here 16q cube plus 2 plus here you will get 24q square plus 12q, right? This is 4m, where m is equal to 16q cube plus 2 plus 24q square plus 12q. अब 4 केसेस है, कोई एक तो सेम बनेगा ना. ये वाला सेम बन गया. दिस इज m नहीं, यहाँ पे आप हाँ दिस इज m, यहाँ पे भी m है बेटा. दिस इज m, दिस इज m. सेकेंड केस इज अगेन 4m. अब थर्ड केस करते हैं स्टार्ट. Now let's do our last case. This is a is equal to 4q plus 3. 4q plus 3. Now do cubing both sides. You will get 64q plus 3q plus 3a square b plus 3ab square. जब आप इसको ओपन करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 64q square plus 3 3 is 9, 3 is 27. This is 16, 9 is 144q square and this is 108q. अब आप देखो ये जो नंबर है ये इवन नंबर नहीं है. दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4, मीन्स आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा. अब ब्रेक आप इस तरह से करोगे कि आपके पास रिमाइंडर 0 1 2 और 3 ही बचना चाहिए, क्योंकि हमारा डिवाइजर कितना चल रहा है 4. तो रिमाइंडर कैन नॉट बी ग्रेटर देन 4 ना. तो आप इसको कैसे लिखोगे? इट कैन बी रिटन एज 64q स्क्वायर. पहले तो इन सबको इकट्ठा कर लेते हैं. 144q square, this is cube, this is square, plus 108q. How we can write 24? Divided with 4, you will get
24 प्लस 3, 4 6 से 24 होता है ना, तो जब आप 4 इसको 4 से डिवाइड करोगे तो ये 6 से जाएगा और 3 रिमाइंडर बचेगा. तो वी कैन राइट इट लाइक दिस. Among all these you can take 4 common, right? 4 can be taken common. You will get 16 q cube plus this is here you will get 36 q square. Here you will get 27q plus here you will get 6 plus 3. Now this can be considered as m, 4m plus 1, where m is equal to 16q cube plus 36q square plus 27q plus 6 plus 3. This is plus 3, 4m plus 3. Now we got our all cases, right? Either 4m or 4m plus 1 or 4m plus 3. Now let's move on our next question. Okay, now let's do question number 3. Question number 3 and question number 4 are same almost, right? Question is, show that the square of any positive integer cannot be of the form 5q plus 2 or 5q plus 3. And question number 6 is 4 is, show that the square of any positive integer cannot be of the form 6m plus 2 or 6m plus 5. बस यही डिफरेंस है, यहाँ पे डिवाइजर 5 है और नेक्स्ट क्वेश्चन में डिवाइजर कितना है, 6 है. तो चलिए पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 4 यू हैव टू ट्राई, राइट? लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. दिस इज, show that the square of any positive integer cannot be of the form 5q plus 2, 5q plus 3, right? किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हम उसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर. अब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, डिवाइजर यहाँ पे 5 है, ये तो दोनों केसेस की बात ही नहीं हो रही, right? 3 square is 9. Can you write 9 as 5 multiplied by something plus 2 or plus 3? अगर आप इसको लिख सकते हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 5 multiplied by 1 plus 4, है ना? 5 अगर डिवाइजर रहेगा तो रिमाइंडर 4 आएगा, पर यहाँ पे रिमाइंडर या तो 2 बच रहा है या फिर 3 बच रहा है, तो इसको तो नहीं लिख सकते. 4 4 16 और 16 को 5 से डिवाइड करके देखो, 5 3 15, रिमाइंडर इज 1, बट इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म. यहाँ पे रिमाइंडर 2 और 3 की बात कर रहे हैं कि 2 और 3 के रिमाइंडर की फॉर्म में आप किसी भी नंबर के स्क्वायर को नहीं लिख सकते, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट a be any positive integer and b will be the divisor. Therefore, by Euclid's division lemma, we can write a is equal to 5q plus r, where r can be 0, 1, 2, 3 and 4. अब हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं, हमें सारे केसेस के ऊपर स्क्वायर करना है. देयर इज, बट यहाँ पे देखो किसी नंबर के स्क्वायर को हमने एक्सप्रेस करना है 5q plus 2 और 5q plus 3 की फॉर्म में. तो इसका मतलब यहाँ पे तो हम क्यू नहीं लेंगे ना, यहाँ पे हम कुछ और वेरिएबल ले लेते हैं. वी कैन टेक ए है m, 5m plus r, राइट? नाउ फर्स्ट केस इज व्हेन r 0, when 1, when 2, when 3, when 4. तो a के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है? a कैन बी 5m और 5m plus 1 और 5m plus 2 और 5m plus 3 और 5m plus 4. Now what we have to do? We have to do squaring. Take your first case when a is equal to 5m. Squaring both sides. A square is equal to 25m square. How we can write? 5 multiplied by 5m square. This is 5q, where q is equal to 5m square.
बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, बाकी इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है ना इस टाइप के वो आप खुद ट्राई करोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। हमें बताना है कि इन दोनों फॉर्म में से किसी भी फॉर्म में ये एक्सप्रेस नहीं हो सकता, ठीक है। फर्स्ट तो हुआ नहीं, दिस इज 5m, इट इज इन द फॉर्म ऑफ 5m 5q वेयर q इज 5m स्क्वायर, राइट। तो ये इन दोनों में से किसी भी फॉर्म का नहीं है। अब सेकेंड केस लेते हैं, when a is equal to 5m plus 1, squaring both sides, you will get 25m square plus 1 plus 10m. You can take 5 common among both of them. 5m square plus 2m plus 1 you can separate, right. Here you will get 5q plus 1, which is not of the form 5q plus 2 5q plus 3, where q is equal to 5m square plus 2m, ठीक है। चलिए अब केस 3 ले लेते हैं। केस 3 will be a is equal to 5m plus 2 whole square. You will get 25m square plus 4 plus 20m. इसमें से 4 सेपरेट हो सकता है, 25m स्क्वायर प्लस 20m, क्योंकि ये 4 तो ऑलरेडी 5 से स्मॉलर है तो यही रिमाइंडर बचेगा इसमें। अमंग दीज टू यू कैन टेक 5 कॉमन, 5m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4, तो दिस कैन बी रिटन एज 5q प्लस 4। देखो ये कोई भी इस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, राइट। किसी का भी स्क्वायर अभी तक इन दोनों की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हुआ है। स्टिल वी हैव 2 more केसेस, इन पे भी चेक कर लेते हैं। यहाँ में आपने लिखना भी है बेटा, वेर q is equal to 5m square plus 4m. Now take your case 4, a is equal to 5m plus 3 whole square. Do squaring both sides, you will get 25m square plus 9 plus 30m. अब ये 9 इज ग्रेटर देन 5। अब इसको 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर की फॉर्म में लिखना है, इसको सेपरेटली ब्रेक करना पड़ेगा हमें। 25m स्क्वायर प्लस 30m, 9 हाउ कैन बी रिटन एज 5 plus 4. Among these three you can take 5 and 4 will be separate. 5, this is 5m square plus 6m plus 1 plus 4. This is 5q plus 4. Again it is not of this form, right. Now the last one case is, case 5 is a is equal to 5m plus 4 whole square. You will get 25m square plus 16 plus 40 40m, है ना। ये आ गया आपके पास। अब ये 16 को पहले तो ब्रेक करना पड़ेगा। यू कैन राइट इट एज 25m स्क्वायर प्लस 40m। 16 को 5 से डिवाइड करके देखो, 5 3 is 15, तो दिस इज 15 प्लस 1, राइट। 5 के टेबल में 3 पे 15 आता है ना, 5 3 is 15 प्लस 1। Among these three you can take 5 common. This is 5m square plus 5 8 plus 3 plus 1, where this can be written as 5q plus 1, where q is ये q आ जाएगा 5m square plus 8m plus 3. Hope it is clear. Now next question you can try on your own, right? Okay, let's do our next question. Number 6 is, if n is an odd integer, n कौन सा integer है, सिर्फ odd integers की बात हो रही है, then show that n square minus 1 is divisible by 8. उन्होंने बोला है अगर n कोई भी odd integer है, right? अगर आप किसी odd integer के स्क्वायर करके 1 में से माइनस करते हो तो वो हमेशा ही 8 से डिवाइड होता ही है, राइट। n इज एनी ऑड इंटीजर। अब ऑड नंबर कौन से होते हैं, 1 3, देन वी आर हैविंग नेक्स्ट ऑड नंबर इज 5,
नेक्स्ट वी हैव 7. अब इसमें पुट करके देख लो, इसका स्क्वायर करो और बाद में से माइनस करो. अब आप इसका स्क्वायर करोगे, दिस इज 1 स्क्वायर minus 1 is 0. This is 9 minus 1 is 8. This is 25 minus 1 is 24, which is divisible by 8. This is 7 sevens are 49 minus 1 48, and it is also divisible by 8. Right? Now you can see, आप कोई भी ऑड नंबर को यहाँ पे पुट करो, उसमें से -1 करो, इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 8, बट दिस इज ट्रू ओनली फॉर ऑड नंबर्स. राइट? नाउ वी हैव टू डू इट इन द जनरल फॉर्म. तो जनरल फॉर्म में हमारे पास ऑड नंबर्स किस तरह के होते हैं? एज वी नो दैट इन जनरल फॉर्म वी आर हैविंग ऑड नंबर्स लाइक 2q plus 1, right? Because every even integer can be written as 2 multiplied by something 2q. तो odd can be written as 2q plus 1, or we can say 2q plus 3, or we can say 2q plus 5. या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं 4q plus 1, 4q plus 3, 4q plus 5. या 4q plus 5 तो नहीं हो सकता ना, 2q plus 3 भी नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डिवाइजर 2 है बेटा. 2q plus 3 नहीं हो सकता, डिवाइजर 2 है, रिमाइंडर 2 से बड़ा नहीं हो सकता. इट कैन बी ओनली 2q plus 1. Same is there 4q plus 1, 4q plus 3, but it can't be 4q plus 5, right? Because remainder cannot be greater than the divisor 4, right? Next one is, it can be 6q plus 1, it can be 6q plus 3, it can be 6q plus 5. ऐसे ही होता है. बट अब हम यहाँ पे कौन सा ऑड नंबर लेंगे जनरल फॉर्म में करने के लिए? हम 2q plus 1 लेंगे, 4q plus 1 लेंगे, या 6q plus 1 लेंगे? बेटा देखो, अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो वो हमारे पास 8 से डिवाइड नहीं होता है, तो हम 2 नहीं ले सकते. यहाँ पे 2q plus 1 की फॉर्म में नहीं ले सकते. वी हैव टू टेक डिवाइजर एज 4, बिकॉज अगर आप 4 का स्क्वायर करते हो तो आपके पास 8 का मल्टीपल बनता है. तो आप यहाँ पे 4 एज अ डिवाइजर कंसिडर करोगे. ठीक है? तो पहले हम स्टार्ट करते हैं. हम डिवाइजर कितना लेंगे? 4 लेंगे. लेट a हम ऑड इंटीजर नहीं कंसिडर करेंगे, एनी इंटीजर कंसिडर करेंगे. लेट a बी एनी इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 4 विल बी द डिवाइजर. Therefore, by Euclid's division lemma, a is equal to 4q plus r, where r can be 0, 1, 2 and 3, right? अब अगर r की ये पॉसिबिलिटीज बनती हैं तो इसमें से ऑड नंबर की पॉसिबिलिटीज कौन सी बनेंगी और इवन की कौन सी बनेंगी? a is equal to 4q when remainder is 0. This is even. नेक्स्ट इज a is equal to 4q plus 1. अगर ये इवन है तो ये क्या आएगा? ऑड. 4q is an even number because this is a multiple of 2, right? Then a is equal to 4q plus 2. This is even again because here you can take 2 common. a is equal to 4q plus 3. This is odd. अब हमारे पास पॉसिबिलिटीज कितनी बन गई? 4. 2 इवन 2 ऑड. पर हम इसमें से सब पे चेक नहीं करेंगे, हम सिर्फ किस पे चेक करेंगे? n इज एन ऑड नंबर. फर्स्टली वी विल लेट n इज दिस वन, another case we will let n is this one, and we will check for both and we will check whether it is divisible by 8 or not. चलिए चेक करते हैं. We will consider only these 2 cases for odd numbers, right? We are having these odd cases. We will check for both. Case 1, when n is equal to 4q plus 1. इसको चेक करो इसमें पुट करके. n square minus 1, that is 4q plus 1 whole square minus 1. इसको चेक करो कि ये 8 से डिविजिबल होता है. This is 4 4 16 q square a square plus b square plus 2ab, that is 8q, right? Minus 1 और minus 1 दोनों कैंसिल. This is 16q square plus 8q. Can you take 8 common among both of them? 8 2q square plus q.
Is it divisible by 8? Yes, it is 8 multiplied by something. It means this is a factor of 8. It is divisible by 8, right? क्या लिखोगे? Yes, it is. Yes, it is divisible by 8. Either you can write it as 8m, where m is this one. Now check for our second case when n is equal to 4q plus 3. अब इसको पुट करते हैं. This is n square minus 1, that is 4q plus 3 whole square minus 1. You will get 16q square plus 9 plus 24q minus 1. अब देखो 9 minus 1 both are like terms, you can subtract them. 16q square plus 24q plus 8. Can you take common 8 among all these terms? कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है. 8 2s are 3s are 1s are. Nothing we left with remainder here. Nothing is there as a remainder. It means this is 8m. It is divisible by 8. Yes, it is divisible by 8. Is it clear to you all? Okay, now let's move on next question. Now let's do our next question is prove that if x and y are both odd positive integers, x भी odd है, y भी odd है, दोनों ही odd है, then x square plus y square is even. जब आप इसमें पुट करोगे x और y की वैल्यू, हमेशा ही आपके पास एक इवन नंबर आएगा, बट नॉट डिविजिबल बाय 4. पर वो कभी भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, राइट? कोई भी दो ऑड नंबर लेके देख लो. यू कैन चेक फॉर 1 and 3. दोनों का स्क्वायर करो. 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. दिस इज 9 प्लस 1 is 10. Is it even number? Yes. Is it divisible by 4? No. कोई और लेके देख लो. You can take 3 and 7. 3 3s are 9. 7 7s are 49. Add them both. What you will get? 58. Is it an even number? Is it an even number? Yes. Is it divisible by 4? No. This is not divisible by 4. You will get always an even number but not divisible by 4. बेटा कई बार ना ये questions 1 marks में भी पूछ लिए जाते हैं. तो 1 मार्क में जब आंसर्स लिखने होते हैं तो हम इसी तरीके से चेक करते हैं, वहां पे हम पूरा प्रूव नहीं देते हैं, राइट? तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन. प्रूव दैट इफ x एंड y आर बोथ ऑड पॉजिटिव इंटीजर. अब x को भी कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर करना है और y को भी. तो लेट्स कर लेते हैं. लेट x इज इक्वल टू 2q plus 1 and y is equal to 2m plus 1, राइट? अब यहाँ पे 2q plus 3 नहीं लिख सकते, 2q plus 1 ही आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे 3 जो है वो 2 अगर डिवाइजर लेंगे तो 3 बड़ा हो जाएगा ना, रिमाइंडर बड़ा नहीं हो सकता. 2q plus 1, इट कैन बी 2m plus 1, राइट? अब आप बोलोगे कि यहाँ पे 4 डिवाइजर लेना है, तो 2 का स्क्वायर 4 के इक्वल ही होता है, तो वी कैन टेक हेयर 2 ऑल्सो. You can take 4 also, but you can take 2 also, right? I took here 2 positive integers. अगर आपने यहाँ पे 4q plus 1 लेना है तो आप वो भी ले सकते हो. 4q plus 1, 4m plus 1. तो भी आप चेक कर सकते हो, तो भी आपके पास आंसर जो आएगा वो इससे डिविजिबल, 4 से डिविजिबल नहीं आएगा. पर पहले तो चेक करते हैं कि ये इवन नंबर आता है कि नहीं आता है. पुट करें इसमें x square plus y square. This is 2q plus 1 whole square plus 2m plus 1 whole square. Here you will get 4q square plus 1 plus 4q. This is 4m square plus 1 plus 4m. Now this square वाली terms को इकट्ठा कर लेते हैं. This can be written as 4q square plus 4m square. Then 4q plus 4m. These two are the constant ones. Plus 2. अब हमें इसको इवन नंबर बनाने के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा? टू प्रूव दैट दिस इज एन इवन नंबर वी नीड टू प्रूव दिस इज डिविजिबल बाय 2 एंड रिमाइंडर इज 0, राइट? तो क्या आप इन सब में से 2 कॉमन निकाल पा रहे हो? यस वी कैन. 2, दिस इज 2q स्क्वायर
प्लस 2m स्क्वायर प्लस 2q प्लस 2m प्लस 1, और देखो कुछ भी नहीं बच रहा है लास्ट में, तो इसका मतलब दिस इज डिविजिबल बाय 2. सो दिस इज एन इवन नंबर, बट यहाँ पे हम 4 कॉमन नहीं निकाल पा रहे हैं, तो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 4. अगर आप यहाँ पे 4 कॉमन निकालते तो इन सारी टर्म्स में से तो 4 कॉमन आ जाता है और 2 क्या बच जाता है, रिमाइंडर बच जाता है. सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4, बट दिस इज एन इवन नंबर. दिस इज एन even number but not divisible by 4. अगर ये 4 से divisible होता तो you can write it as 4 multiply by something, but you can't write it as 4 multiply by something. आप इसको लिख नहीं पा रहे हो क्योंकि आप इन सब में से 4 कॉमन नहीं निकाल पा रहे हो, so that's why it is not divisible by 4. But you can take 2 common among all the terms without leaving any remainder, so that's why it is an even number, right? Now let's move on our next question. Now our next question is use Euclid's division algorithm to find the HCF of 3 numbers, right? अब हमने जो अपनी NCERT बुक में पढ़ा था उसमें हमने लर्न किया था कि उसमें हमने सीखा था कि 2 नंबर्स हैं अगर आपके पास, तो how we can apply Euclid division algorithm to find the HCF. Now here we are having 3 numbers and we have to find out the HCF of these 3 numbers by using Euclid division algorithm. How we can start, beta? Firstly you have to pick 2 numbers. It is better always pick 2 larger numbers, right? थोड़ा easy हो जाता है क्वेश्चन. पहले हम 2 बड़े नंबर्स को कंसिडर कर लेते हैं. ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इन्हीं को लेना है, आप किसी को भी ले सकते हो, बट इट इज बेटर टू ऑलवेज पिक 2 larger numbers, right? Firstly we will consider let 693 and 567, right? पहले हमने ये दोनों नंबर्स ले लिए. Obviously 693 is greater than 567, so we will consider 693 as dividend and 567 as divisor. So now we have to find one quotient and one remainder. तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं. 693 divided by 567. It will go with 1 only. This is 567. 567. What you will get as its remainder? This is 13. This is 8. 2. 126. Right. Now 126 will become the next divisor and 567 will be the dividend, right? It will go with 1 and remainder is 126. एक बार फिर से चेक कर ले. This is correct. चलिए, it will go with, can it go with 3? 3 से तो it can be, है ना? 126 multiplied by 4 देख लें करके. $504. It can go with 4 even. We will take 4 here. This is 504. ठीक है, चलिए इसका रिमाइंडर कितना आएगा? दिस इज 3, दिस इज 6. Now 126. In next case we are having remainder is not equal to 0. Remainder is not equal to 0. Therefore 567, the previous divisor will become our dividend and remainder will become our divisor. It will go with 4 and remainder is 63. Right. Now 63, it will go with 2. Is it go with 2? Yes. Remainder is 0. As remainder is again not equal to 0, 126 will be our new dividend and 63 will be our divisor. 63 2s are 126 and remainder is 0. What does it mean? What is the HCF here? 63 will be the HCF. 63 HCF of which two numbers?
693 and 567 is 63. Now what is our next step? In our next step we have to consider this HCF and the leftover number. जो भी हमारे पास बचा हुआ एक नंबर था ना, इस नंबर को और HCF को लेना है, फिर इन दोनों को लेके फिर हमने HCF फाइंड आउट करना है, एंड दैट HCF विल बी द LCF ऑफ ऑल दीज थ्री नंबर्स, राइट। जो अभी HCF आया है और जो एक नंबर बचा था, इन दोनों को लो और फिर से HCF फाइंड आउट करो बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। जो भी आपके पास लास्ट में HCF आएगा ना, वही इन तीनों नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ कंसिडर आवर नेक्स्ट टू नंबर्स, दैट इज now 441 and 63. 441 is larger, so 441 will be the dividend. 63 multiplied by what plus dash, quotient and remainder. Divide करके देख लेते हैं। 441 divided by 63. It can go with 7 से करके देख लेते हैं। 63 7 जा, अरे बाप रे, ये तो एग्जैक्ट ही जाता है ना। 63 7 जा, 7 3 जा 21, 2 left. What you will get here? This is, it will go with 7 and remainder is 0. What is the HCF? HCF, if HCF of 441 and 63 is 63. What does it means? Therefore, HCF of three numbers, three given numbers, HCF of 441, 567, 693 is 63. Hope it is clear, right? Okay, now let's do this question. Using again, this is very important question, right? Using Euclid division algorithm, find the largest number that divides 1251, 9377, 15628, leaving the remainder 1, 2 and 3 respectively. इस केस में रिमाइंडर 1 आ रहा है, इस केस में रिमाइंडर 2 आ रहा है, इस केस में रिमाइंडर 3 आ रहा है। पहले आप एक बार देखो बेटा, आपको क्वेश्चन समझ पढ़ के क्या समझ में आ रहा है। वी नीड टू फाइंड आउट HCF और LCM। उन्होंने बोला यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ऑल दीज थ्री नंबर्स, है ना। ये तो बाद की बात होगी ना, लिविंग द रिमाइंडर, दैट डिवाइड्स ऑल दीज थ्री नंबर्स। एक ऐसा नंबर हमने फाइंड आउट करना है जो इन तीनों नंबर्स को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो डिवाइड करेगा तो वो इनसे छोटा होगा कि बड़ा होगा? ऑब्वियसली वो इनसे छोटा होगा ना। तो इसका मतलब वो एक फैक्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। पर लिविंग द रिमाइंडर, अब इस केस में तो रिमाइंडर्स भी बच रहे हैं, तो मीन्स पहले तो हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जब आप उसको इससे डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, इससे डिवाइड करोगे तो 2, उसी नंबर को जब आप इस नंबर को उस एक नंबर से डिवाइड करोगे तो आपके पास 3 आएगा, राइट, रिमाइंडर। एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करिए जब आप उसको जब 1251 को उस नंबर से डिवाइड करोगे तो आपके पास 1 रिमाइंडर बचेगा। जब आप 9377 को उस नंबर से डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा। जब आप 15628 को उस नंबर से डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा। नंबर एक ही है, राइट। तो अब हम क्या कर लेते हैं, लेट दैट नंबर बी ए। हमें नहीं पता कौन सा नंबर है, हमने लेट कर दिया कि वो एक नंबर क्या है, ए है। जब आप उसको इससे डिवाइड करोगे, मीन्स जब आप 1251 को डिविडेंड लोगे और ए को डिवाइजर लोगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1, बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। यहाँ पे हमारे पास कुछ भी आ सकता है, क्यों लिख लेते हैं। जब आप 9377 को आप लोगे डिविडेंड और उसको डिवाइड करोगे ए के साथ तो आपके पास रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2। Take it as Q1. They can't be same ना। Now the third one is 15628. जब आप उस नंबर को 15628 को A से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3। अब A कोई ऐसा नंबर है, इससे डिवाइड A के साथ जब इस नंबर को डिवाइड करोगे, A को
इस नंबर को जब a से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर आ रहा है. व्हेन यू विल डिवाइड दिस नंबर बाय a you will get 2. व्हेन यू विल डिवाइड दिस नंबर बाय a you will get 3 एज अ रिमाइंडर. नाउ इट इज नॉट इजी टू फाइंड आउट दैट नंबर फ्रॉम हेयर. तो व्हाट वी विल डू, हमें इतना तो पता है कि अगर हम इन रिमाइंडर्स को पहले ही ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमारे पास एक a ऐसा नंबर आएगा जो तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि हम रिमाइंडर्स को क्या कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं. तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम इसको ऐसे लिख देते हैं, 1 को ट्रांसपोज कर दो. 1250 1251 minus 1 is equal to AQ, right? This is 9377 minus 2 is equal to AQ1. This is 15628 minus 3 is equal to AQ2. अब देखो ये तीन नंबर जो भी आपके पास आ रहे हैं ना, ये तीनों नंबर a से डिविजिबल हैं बिना किसी रिमाइंडर को छोड़े हुए. तो ये नंबर कौन कौन से आ रहे हैं? द फर्स्ट नंबर इज 12510 is AQ. Second is 9375 is AQ1. Next is 15628, 8 में से 3 माइनस किया 5. This is AQ3. All these numbers are having A as a common factor. Highest common factor is A here. So what we will do, we will try to find out the HCF of all these numbers. तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा? A मिल जाएगा. अब हम A फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे HCF निकालना पड़ेगा. A क्या है यहाँ पे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. A is हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, राइट? अब A को निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. अब हम इन तीनों नंबर्स का क्या निकालेंगे? HCF, एंड वी विल गेट अ रिक्वायर्ड नंबर. तो चलिए करते हैं. As we discussed in our previous question also, if we are having three numbers, we have to firstly assume our any two larger numbers. पहले हम इन दोनों नंबर्स को ले लेते हैं, इनके ऊपर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं, ठीक है? Which one is the largest one? 15625, right? Can be written as 9375 multiply by what? Plus remainder. हमें quotient और remainder find out करने हैं यहाँ पे. तो कर लेते हैं. 15625 divided by 9375. अगर हम 2 से भी करते हैं ना तो ये बड़ा आएगा, है ना? तो it will go with 1. It will go with 1. That is 9375. Remainder is 0. 5 2, right? 6. Now this will be the next. This is 9375. Again it will go with 1 only. This is 6250. Remainder will be 5. This is 2. This is 1. This is 3125. If you will take 3125 as a divisor and this 6250 as your dividend, it will go with 2, right? This is 6250. Remainder will be 0. तो चलिए अब यहाँ पे complete कर लेते हैं. When you divided with this 1 as a quotient and remainder was 6250. Remainder is not equal to 0. Now next step is 9375 will be our next dividend and 6250 will be the divisor. When 6250 is divisor, it will go with 1 and remainder is 3125. Remainder is again not equal to 0, right? If remainder is not equal to 0, this will become our dividend. 6250 is equal to 3125 multiply by, it will go with 2. This gives us remainder 0. So therefore this is the HCF. This is HCF of which two numbers? 3125 is HCF of 1 2 no. This is 9375 and
15625। अब हमारे पास दो नंबर्स का HCF तो आ चुका है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हम ये वाला HCF लेंगे और जो हमारा एक बचा हुआ नंबर है उसको लेंगे और उन दोनों का HCF निकालते हैं, राइट। नाउ कंसिडर 1250 and 3125, right? Which one is the larger? 3125. This is 3125 and 1250. Obviously it will go with 2 or 1. Can it go with 2? चलो डिवाइड करके देख लेते बेटा. You can see this is 3125 divided by 1250. 3 से ये बड़ा आ जाएगा. It will go with 2. This is 0. 5 and this is 2. What you will get remainder here? This is 5. This is 2. 11. This is 625 and 1250. It will go with 2, right? This is 1250, right? This is it will go with 2. Remainder will be 625. As remainder is not equal to 0, therefore 1250 will be next dividend and 625 will be the divisor. It will go with 2 and remainder is 0. Remainder will be 0 here. So what does it mean? 625 is the HCF. 625 is HCF of all these three numbers: 1250, 739375 and 15625. इन तीनों नंबर्स का HCF कितना है? 625. एंड 625 इज द रिक्वायर्ड नंबर ऑल्सो. यही वो रिक्वायर्ड नंबर है. जब आप इन जो गिवन तीनों नंबर्स थे उनसे डिवाइड करोगे तो फर्स्ट केस में आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा? 1, सेकंड केस में 2 और थर्ड केस में 3. आप चेक भी कर सकते हो आप अपना आंसर. ठीक है. व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द करेक्ट नंबर? इज 625. लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Now our next question is, prove that root 3 plus root 5 is an irrational numbers. We have done these type of questions in NCERT also, but वहाँ पे एक ही difference था कि दोनों irrational numbers नहीं थे, है ना. यहाँ पे root 3 भी irrational है, root 5 भी irrational है. How we can prove it? Again we will use method of contradiction है. Let us assume root 3 plus root 5 is a rational number. Rational number. If it is a rational number, root 3 plus root 5 can be written in the form of P upon Q, where Q is not equal to 0. P and Q are co-prime integers. Right. Now what we have to do? We are not supposed to do squaring here. You can transpose one of them on another side. Keep root 3 on one side. This is P upon Q minus root 5. Now do squaring on both sides. Squaring both sides. You will get 3 on this side and on this side you will get P upon Q minus root 5 whole square. Open this square all. जब आप इसका square open करोगे तो this is 3a square plus b square minus 2ab. ये बनेगा ना आपके पास. This will be P upon Q. अब देखो क्वेश्चन कितना इजी हो गया. This is 3. Transpose the terms which are not containing irrational numbers, right? पहले तो हम terms transpose करेंगे. 3 minus 5 minus p square upon q square. On this side we left with root 2 root 5 p upon q. इसको थोड़ा सा solve कर लेते हैं. This is minus 2
minus p square upon q square and this is minus 2 root 5 p upon q. अब हमने क्या करना है, रूट 5 को एक साइड पे रखना है और बाकी सारा कुछ दूसरी साइड पे ट्रांसपोज करना है. इस सारी इक्वेशन को फिर से रीअरेंज करना है. तो चलिए करते हैं. हाउ वी कैन डू दैट? कीप दिस माइनस 2 minus p square q square on this side and transpose this minus 1 upon 2 on this side and also p upon q also. तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. This is q upon p. On this side we are having only root 5 माइनस, इसमें से जब माइनस कॉमन आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ठीक है. दिस इज 1 upon 2. टेक एलसीएम. 2q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर इंटू q अपॉन p इज इक्वल टू रूट 5. इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके लिख लेते हैं. यू विल गेट, जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 2q माइनस p स्क्वायर q अपॉन 2p q स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 5. अब बेटा देखो, ये सारे q रेशनल नंबर है, p रेशनल नंबर है, 2 रेशनल नंबर है. जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, स्क्वायर करोगे, प्लस करोगे, माइनस करोगे, मैक्सिमम आप डिवाइड करोगे तो आपके पास कौन सा नंबर आएगा? रैशनल. बट रूट 5 इज एन इररेशनल नंबर. दिस इज अ रैशनल नंबर, दिस इज एन इररेशनल नंबर, सो देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. अब यहाँ पे क्या लिखोगे? p q 2 2q q q स्क्वायर p स्क्वायर q 2p q स्क्वायर, all are integers. Therefore इधर लिख रही हूँ मैं, therefore 2q क्यूब माइनस p स्क्वायर q अपॉन 2p q स्क्वायर इज अ रेशनल नंबर. जब आप इंटीजर्स को इंटीजर से डिवाइड करते हो तो कौन से नंबर आते हैं? रेशनल नंबर्स. देयरफॉर बट रूट 5 इज एन इररेशनल. बट रूट 5 इज एन irrational number. It contradicts the fact that root 5 is an irrational number. यहाँ से क्या बन गया हमारे पास कि rational और irrational equal हो गए. Rational can't be equal to irrational. आगे, this contradiction arisen because of our wrong supposition. And what was the correct supposition? What is the correct supposition? This is an irrational number. Because हमने assume क्या किया था कि ये rational number है, पर हमारी contradiction यहाँ पे जो हमने लिया था उसकी वजह से यहाँ पे contradiction arise हो गया कि rational और irrational equal नहीं हो सकते हैं, है ना. तो therefore आप पहले यहाँ पे लिखोगे this contradiction arisen because of our wrong assumption. Therefore root 3 plus root 5 is an irrational number. Is it clear? चलिए, let's move on our next question. Now next question is, show that 12 raised to power n cannot end with the digit 0 or 5 for any natural number n. आप n की कोई भी पावर पुट कर दो, any natural number, 12 raised to power 1, 12 raised to power 2, 12 raised to power 3, or even you can say 12 raised to power 100. कभी आपके पास ऐसा आंसर आएगा कि जब आप इसको, जैसे इसका स्क्वायर खोला तो 12, इसका स्क्वायर खोला तो 144, कभी आपके पास ऐसा होगा कि इसकी आप कोई पार करो और आपके पास लास्ट में 0 और 5 आ जाए? इज इट पॉसिबल एनी हाउ? ये आपको बताना है कि इज इट पॉसिबल फॉर एनी नेचुरल नंबर, है ना. अब बेटा देखो कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है. पहले तो हम लिखते हैं व्हाट इज द गिवन नंबर 12 रेज़्ड टू पावर n. व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12? इट इज कंटेनिंग 2's are 4, 3's are 12 raised to power n. अब यहाँ पे 2 है, 2 है, 3 है, राइट. इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन 0 बनने के लिए उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों ही होने चाहिए, और 5 बनने के लिए अकेला 5 होना चाहिए, 5 के सिवा कुछ और होना ही नहीं चाहिए, है ना. मतलब एक नंबर 5 किसी नंबर के एंड में तभी आता है, जैसे बेटा आप 5 का टेबल देखो, 5 के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं ना, वो
5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, जहाँ तो 0 से एंड होते हैं या फिर 5 से एंड होते हैं, है ना। अब इसमें ना तो 5 एक फैक्टर है, ना ही एक फैक्टर 0 है, मतलब 2 और 5 इकट्ठा मिलके 0 नहीं, 2 और 5 इकट्ठा मिलके हमारे पास 0 बनाते हैं। अगर आप 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो हमारे पास 10 बनता है, तभी लास्ट में हमारे पास 0 आता है। बट इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन डज नॉट कंटेनिंग 5, तो इट विल नेवर एंड्स विथ 0, ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा, नेवर एवर, बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन आप क्या लिखोगे, इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन डज नॉट कंटेनिंग 5, राइट। 5 is not any factor among the prime factorization of 12, so it will never ends with digit 0 or 5, right। कभी तो ये 0 और 5 से कभी भी एंड नहीं करेगा। आप 2 की पावर कुछ भी ले लो, वो अकेला कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा। 2 की पावर यहाँ पे भी कुछ भी ले लो, 2 5 के साथ मिलके ही 10 बनाता है, तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं है कि इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आ रहा ना, तो इट मीन्स इट विल नेवर एंड्स विद डिजिट 0, कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, इसको लिख लो, एज इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन does not have 5 as its factor, as its prime factorization does not have 5, so it will never ends with digit 0 or 5 for any natural number, n, कभी भी किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए ये 0 और 5 से एंड नहीं होगा, ओके। Okay, now let's have a look on our next question. Next question is, on a morning walk, 3 persons step off together. 3 persons ने एक ही जगह से चलना शुरू किया, and their steps measure 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर। बेटा देखो, हर पर्सन के जो स्टेप्स होते हैं, फुट स्टेप्स अलग अलग साइज के होते हैं। उन्होंने बोला जो फर्स्ट पर्सन है वो एक स्टेप में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 40 सेंटीमीटर का उसका एक स्टेप है, राइट। 40 सेंटीमीटर पता है ना कितना होता है, 30 सेंटीमीटर का लार्ज स्केल, उससे थोड़ा सा ज़्यादा 40 सेंटीमीटर। जो नेक्स्ट पर्सन है, his one step is of 42 centimeter and the third person is of 45 centimeter, right। इतना तो क्लियर हो गया। What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps? अब इसका क्या मतलब है, अगर मैं आपको अपनी सिंपल भाषा में बताऊं, आपने सबसे कम ऐसा डिस्टेंस निकालना है कि जब जो आपने एक ऐसा डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मिनिमम मीन्स, पहले तो हम बात करते हैं कि अपने मिनिमम की तो बाद में बात करते हैं, अपने एक ऐसा डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जिस पर्सन का एक स्टेप 40 सेंटीमीटर का है ना, जब वो उस पूरे डिस्टेंस को कवर करेगा ना, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, वो पूरा डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर्स के साथ कंप्लीट होना चाहिए बिना कोई रिमाइंडर छोड़े हुए। वही डिस्टेंस जब 42 वाला कवर कर रहा है तो भी कंप्लीट होना चाहिए बिना कोई रिमाइंडर छोड़े हुए, राइट। और जब आप 45 के साथ 45 जिसके स्टेप की लेंथ 45 सेंटीमीटर है, जब वो उस डिस्टेंस को कवर कर रहा है तो उसका भी वो डिस्टेंस कंप्लीटली कवर होना चाहिए बिना किसी रिमाइंडर के। मीन्स बेटा देखो, जैसे मान लो मैं आपको बोलूँ कि टोटल डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है ना, ये तो एक छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ। 8 सेंटीमीटर अगर आपके पास टोटल डिस्टेंस है, एक पर्सन है वो 2 सेंटीमीटर के स्टेप्स ले रहा है, तो 2 सेंटीमीटर के स्टेप्स में वो 4 स्टेप्स में इसको कवर कर देगा, है ना, 4 स्टेप्स में इसको कवर कर देगा ना। ऐसे ही एक पर्सन है, अगर वो 4 सेंटीमीटर की स्टेप ले रहा है तो वो उसको 2 स्टेप्स में ही कवर कर देगा, पर ये डिस्टेंस पूरा कंप्लीट हो रहा है बिना किसी रिमाइंडर के। पर अगर यहाँ पे 9 सेंटीमीटर होता और एक पर्सन का अगर स्टेप 2 सेंटीमीटर का होता तो वो इसको कंप्लीट कर पाता। 2 2 4 2 8, उसका फर्स्ट स्टेप यहाँ पे होता, फिर 2, ये 2 हो गया,
फिर ये 4 हो गया, फिर ये 8 हो गया, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाता वहां पे, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाता, क्योंकि ये 9 है ना, तो वो एक स्टेप में 2 सेंटीमीटर ही कवर कर पा रहा है। मीन्स उन्होंने बोला है यहाँ पे आपने एक ऐसा कॉमन डिस्टेंस निकालना है, मिनिमम। मिनिमम मीन्स सबसे पहला ऐसा कॉमन डिस्टेंस बताना है कि जिसको तीनों पर्सन्स ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। कंप्लीट स्टेप्स मीन्स किसी को भी अपना स्टेप छोटा या बड़ा ना करना पड़े। अगर वो 40 सेंटीमीटर के स्टेप में चल रहा है तो वो पूरा डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर के ही स्टेप्स में कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको लास्ट उसका स्टेप है उसको बड़ा करना पड़ा या छोटा करना पड़ा। सेम इज फॉर 42 सेंटीमीटर के स्टेप्स में चल रहा है तो उसका लास्ट स्टेप भी 42 पे ही खत्म होना चाहिए, 42 पे उसका पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए वो डिस्टेंस, राइट। तो इसका मतलब हमें क्या निकालने पड़ेंगे, अगर हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसको 42 कंप्लीटली डिवाइड करे तो इसका क्या होगा, मल्टीपल। 42 का भी मल्टीपल, 40 का भी मल्टीपल, 45 का भी मल्टीपल, राइट। तभी तो वो कंप्लीटली कवर करेगा बिना कोई रिमाइंडर छोड़े हुए, ताकि उसका लास्ट स्टेप, कंप्लीट स्टेप तो तभी होंगे ना, लास्ट स्टेप छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए 40 का, और डिस्टेंस भी पूरा कवर होना चाहिए, राइट। तो इसका मतलब है हमें इनके क्या निकालने पड़ेंगे, मल्टीपल, तभी वो रिमाइंडर्स क्या देंगे, हमें 0 देंगे। अब तीनों का मल्टीपल निकालना है ना, तीनों के मल्टीपल्स तो अलग अलग ही होंगे। तो मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स LCM। व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट हियर, LCM। लिखिए, हाउ वी कैन स्टार्ट दिस क्वेश्चन, हाउ वी कैन राइट। मतलब मान लो उन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया है, अब मान लो उन्होंने जो टोटल डिस्टेंस है वो ये है A, ये कितना है टोटल डिस्टेंस A, ये भी उसको 40 के स्टेप्स में कंप्लीट करेगा, ये इसको 42 के स्टेप्स में, ये इसको 45 के स्टेप्स में। मींस A इन सबका क्या आ गया, कॉमन मल्टीपल आ गया। मींस एक ऐसा नंबर आ गया जब आप उसको 40 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कुछ और आएगा, 40 क्यूब, पता नहीं कितने स्टेप्स लिए हैं, और रिमाइंडर कितना आएगा, 0। जब A को आप 42 से डिवाइड करोगे, स्टेप्स पता नहीं कितने बनेंगे पर रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। जब आप A को 45 से डिवाइड करोगे, we don't know how many steps but remainder will be 0. Is it clear? तो means what we have to find out, we have to find out LCM। क्या find out करना है इस क्वेश्चन में, हमने LCM find out करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज मिनिमम बेटा, नॉट मैक्सिमम, दिस इज मिनिमम, राइट। लेट मी यूज माई रेड पेन है। मिनिमम डिस्टेंस, राइट, मिनिमम डिस्टेंस, राइट, नॉट मैक्सिमम। चलिए करते हैं, मिनिमम डिस्टेंस होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट। चलिए लेट्स स्टार्ट। क्या फाइंड आउट करना है हमने इसमें, LCM। LCM ऑफ 40, 42 एंड 45। तो निकालो इन तीनों का LCM कितना आता है। पहले 40 की प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं। This is 2 tens, 2 into 4 tens are 40 ना, 2 into 2 into 2 into 5. It can be written as 2 cube into 5. This is 42. 6 sevens are 2 into 3 into 7. 45. 5 nines are 3 into 3 into 5. This is 3 square into 5. What is the LCM? LCM will be, अपने पहले तो सारे फैक्टर्स लिखने हैं जो जो भी इसमें यूज हो रहे हैं प्राइम नंबर्स। 2 यूज हो रहा है, 3 यूज हो रहा है, 5 यूज हो रहा है और 7 यूज हो रहा है, और सबकी हाईएस्ट पावर। व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 2? हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इज 3, हाईएस्ट पावर ऑफ 3 इज 2, हाईएस्ट पावर ऑफ 5 इज 1 एंड हाईएस्ट पावर ऑफ 7 इज ऑल्सो 1। तो इसको कर लो मल्टीप्लाई, 5 8 2 के साथ मिलके 10 बनाएगा। दिस विल बी 4, 9 4s are 36, 360 multiply by 7, this is 0, 2520. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in the complete steps? 2520। ये इतना डिस्टेंस आएगा जिसको तीनों कंप्लीट स्टेप्स में कवर कर पाएंगे। अब चेक कर लेते हैं, 2520 है तो A को कितने स्टेप्स लेने पड़ेंगे, फर्स्ट पर्सन को कितने स्टेप्स लेने पड़ेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए, 0।
इसको करके देखो 63 स्टेप्स में, ये जो फर्स्ट पर्सन है वो 63 स्टेप्स में अपना पूरा कंप्लीट कर लेगा। ये हमें निकालना नहीं है, जस्ट आई एम टेलिंग यू, राइट। 2520, अब इसको 42 से डिवाइड करके देख लो। यू कैन, इट कैन गो विद, पहले तो 2 से ही कर लेते हैं, और 4 से भी कर सकते हैं, नहीं 2 से ही करेंगे। 2 2s are 4, 2 1s are 2, this is 2 1s are 2, it can go with 7 से कर लो बेटा, 7 6, तो it will, you will get here 7, जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे you will get 360, तो दिस इज 60। सेकेंड पर्सन कितने स्टेप्स में कंप्लीट करेगा? 60 स्टेप्स में। और थर्ड पर्सन कितने स्टेप्स में कंप्लीट करेगा? दिस इज 2520 डिवाइडेड बाय 45, तो इसको 45 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 5 9s are 45, 9 5s are 45, पहले 9 से कर लेते हैं। 9 5s are 45, 8s are 0, this is 8 5s are 25, 3 left, 8 6 are 30, 56 स्टेप्स में। वो इस डिस्टेंस को कितने स्टेप्स में कंप्लीट कर लेगा? 56 स्टेप्स में। इज इट क्लियर टू यू ऑल कि हमने इसमें एलसीएम क्यों निकाला? ओके, लेट्स मूव ऑन आवर लास्ट क्वेश्चन। बेटा क्लास में लिखोगे भी 2520 इज द डिस्टेंस विच ईच कैन कवर इन द कंप्लीट स्टेप्स, राइट? ईच वन ऑफ देम कैन कवर इन द कंप्लीट स्टेप्स। नाउ लेट्स मूव ऑन आवर लास्ट क्वेश्चन। This is not last, this is second last question, right? What we have to do in this question, write the denominator of this in the form of 2 raised to power m and 5 raised to power n. Also write its decimal expansion without doing actual division. हमें इसका decimal expansion भी बताना है। तो this is 257 upon 123, तो सीधा ही लिख लो। क्या इसको तो हम सिंपली भी कर सकते हैं ना, 5 into 10 into 10, हाउ मेनी टाइम्स 2 वी हैव? 3 टाइम्स 2 raised to power 3, इसमें 3 टाइम्स 5 है और एक ये वाला हो गया 5, हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स, राइट? टू डू इट्स डेसिमल एक्सपेंशन, ये तो आ गया इसकी फॉर्म में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? m इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 4। m इज 3, 2 raised to power m and 5 raised to power n था ना, m is 3 and n is 4. This is our first answer. Second is we have to write it in the decimal expansion. We have to write its decimal expansion also, right? अब बेटा देखो, एक 5 एक 2 के साथ मिलके 10 बनाता है, पर यहाँ पे 2 कितने हैं? 3, और 5 कितने हैं? 4, तो कितने 2 लेस हैं? 1. It means we need to multiply the denominator and numerator by 2. So let's do this. 257 2 raised to power 3 multiply by 5 raised to power 4 multiply by 2 multiply by 2. अब यहाँ पे क्या होगा? This is 7 2s are 14, 4 1 left, 5 1 4 divided by 2 raised to power 4 into 5 raised to power 4. What you will get? 5 1 4 divided by, एक 2 एक 5 के साथ मिलकर 10 बनाएगा, तो कितने 10 बन गए? 4, 1 2 3 4. Put the decimal here, 5 1 4. 4 digits should be there after the decimal. 0.0514 is the decimal expansion. Okay, now let's do last question. Okay, let's do, this is our last question. Prove that root p plus root q is irrational where p and q are prime. बेटा सेम क्वेश्चन अभी हमने किया था ना, root 3 plus root 5 is an irrational number where 3 and 5 both are primes. सेम उसी प्रोसीजर से ही हम ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? उसी पैटर्न से करेंगे, उसी तरीके से करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट विद दैट। लेट अस अज्यूम, अगेन वी हैव टू यूज मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। लेट अस अज्यूम दिस इज अ रैशनल नंबर. लेट अस अज्यूम root p plus root q is a rational number. Therefore
रूट पी प्लस रूट क्यू. अब आप इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में मत लिख लेना, ए अपॉन बी लिख लो, है ना. ए अपॉन बी वेयर बी इज नॉट इक्वल टू 0, ए एंड बी आर co-prime integers, right? What we have to do next? We have to transpose any one of them. Root p is equal to a upon b minus root q. Now squaring both sides. Do squaring both sides. What you will get here? Root p square, and on this one side a upon b minus root q square. Open its square. ये तो कट जाएगा. Here you will get only p. This is a square upon b square plus root q square is q minus 2ab. This is a and this is b, right? Again we have to rearrange it in such a way. On one side we have to keep an irrational number and rest all we have to transpose on another side. इसी को transpose कर देते बेटा, ये positive हो जाएगा. You will get 2ab root q is equal to a square upon b square plus q minus p, right? अब इसमें से हमने रूट क्यू एक साइड पे रखेंगे, बाकी सब हम एक एक करके ट्रांसपोज कर देंगे. तो कर लेते हैं. रूट क्यू, जब आप इसको ट्रांसपोज करोगे यू विल गेट b अपॉन 2a. नाउ टेक एलसीएम इनसाइड. दिस इज b स्क्वायर, दिस विल बी a स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर, राइट? नाउ यू कैन सी दिस b and b स्क्वायर कैन बी कैंसल. व्हाट इज लेफ्ट? a square plus qb square minus pb square upon 2ab is equal to root q. a is an integer, b is an integer, q is an integer, p is an integer, so this one number will become rational and root q is an irrational number. Any prime number under the root is always irrational. और उन्होंने हमें यहाँ पे गिवन दिया हुआ है कि q जो है वो कौन सा नंबर है. q इज अ प्राइम नंबर. तभी तो मैंने यहाँ पे इसी साइड पे स्क्वायर नहीं किया, क्योंकि इसी साइड पे स्क्वायर करते हैं तो अंडर द रूट p इंटू क्यू आ जाता. तो हो सकता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास वैसे तो अगर ये दोनों सेम हो तभी रूट सॉल्व होगा, अगर ये दोनों डिफरेंट होंगे तो भी रूट सॉल्व नहीं होगा. बट हमें ये कुछ नहीं पता कि ये दोनों सेम है कि डिफरेंट है, इसलिए हमने वो केस अवॉइड किया. हमने ए को ट्रांसपोज कर दिया दूसरी साइड पे, फिर उसके बाद स्क्वेयरिंग करा. ठीक है. अब लास्ट में हम क्या लिखेंगे? लास्ट में लिखिए ए पी बी क्यू ए स्क्वायर QB square PB square 2AB all are integers. Therefore a square plus QB square minus PB square upon 2AB is a rational number. ये कौन सा नंबर है? Rational number. But root q is an irrational number. But root q is an irrational number. Irrational cannot be equal to rational. Irrational cannot be equal to rational. And this contradiction has arisen because of our wrong assumption. Therefore, root 2 plus root p plus root q is an irrational number. Hope it is clear. Thank you all.